Hello student, today we solve next exercise 6D, solution of linear invocation in two variable. Now ਆਪਾਂ 6A ਤੇ B ਵਿੱਚ linear equation ਦੇ solution find ਕੀਤੇ ਆ but ਉੱਥੇ variable only one ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ two variable ਵਿੱਚ linear invocation ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ solve ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 6C नहीं करनी बिकॉज 6C कवर हो जूगी 6D ची ठीक है ओनली उत्थे ग्राफ किमें बनाना वो सिखाया होया वो 6D ची कर लोगे कवर तो आप 6D ही करनी है ये लास्ट एक्सरसाइज आ ये भी नहीं करनी ओके नाउ फर्स्ट लीनियर इनवोकेशन टू वेरीएबल विच अगर होवे तां उहनूं आप सोल्यूशन फाइंड करन दा वे आ ग्राफिकली ओके जिवें सिंगल वेरीएबल विच आपां सोल्यूशन फाइंड कीता सी इन इंटरवल च उवें टू वेरीएबल विच सॉल्व करन दा वे आ ग्राफिकली वे ओके ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ +1 ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ +2 ਲਈ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ 6A ਤੇ B 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ +2 ਦੇ 6 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੁਸੀਂ ਇਹ D ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜਾ +2 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ +2 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਕੇ ਨਾਓ ਆਈ ਸੋਲਵ ਫਸਟ ਸਮ this sum not necessary to solve because x greater than 0 y greater than 0 just note के जिस तरह अपने कोले ग्राफ विच 4 quadrant हुंदे आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4 quadrant ਹੁੰਦੇ ਆ this side ਆਪਾਂ start ਕਰਦੇ naming ਦੇਣਾ first second third fourth x greater than 0 y greater than 0 show first quadrant why because x greater than 0 means positive value of x y greater than 0 means positive value of y which coordinate contain x positive and y positive ਕਿਹੜਾ quadrant ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x y ਦੋਨੇ positive ਹੁੰਦੇ ਆ first ਨਾ ਤਾਂ just ਇਹ show ਕਰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ first quadrant ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ठीक है तो जिस भी सम दे नाल इस तरह थोड़े कोले x greater than 0 y greater than 0 होगा उदा ग्राफ उदा जिहड़ा शेडेड पार्ट आ नॉट ग्राफ बट जिहड़ा शेडेड पार्ट आ वो थोड़े कोले फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ही बनूगा क्लियर ओके आई सॉल्व नेक्स्ट सम नाउ फर्स्ट you write given constraint now here new word constraint what is constraint means invocations सेम मीनिंग है इनोकेशन एंड कंस्ट्रेन का बिकॉज +2 च थोनू इनोकेशन की जगह ते कंस्ट्रेन लिखिया मिलूगा ता करके कंस्ट्रेन मैं इत्थे यूज़ कर रही हाँ इनोकेशन भी यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रेन मीनस एनी इनोकेशन विच हैव इनइक्वलिटी साइन जिहदे कोले इनइक्वलिटी दे साइन होने इनइक्वलिटी मीनस लैस दैन ग्रेटर दैन साइन ओके नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ सम दी कन्वर्टिंग गिवन इनोकेशन इनटू ओकेशन कन्वर्ट करना तुसी गिवन जिहड़े कंस्ट्रेन होणगे उन्हां नूं ओकेशन च वाई बिकॉज जिहड़ा ग्राफ वो हमेशा ओकेशनस दा बनदा हुंदा लाइनस दा बनदा हुंदा इक्वलिटी दा बनदा हुंदा ओके तां तुसी हमेशा ग्राफ बनाउण दे लई ਤੁਹਾਨੂੰ नीड आ ओकेशनस दी तां जदों भी कंस्ट्रेन दा ग्राफ बनाउणा मतलब इनओकेशन दा ग्राफ बनाउणा तुसी मस्ट आई लाइन लिखोगे कि कन्वर्ट किया सी इनओकेशन नूं ओकेशन च क्लीयर नाउ चेंज सिंपल चेंज करना बस जिथे इनइक्वलिटी दे साइन आ लैस दैन ग्रेटर दैन उत्थे इक्वल टू दे साइन पा देने आ ओके x इक्वल टू 3 दैन y इक्वल टू 2 नाउ हेयर अगर x 3 दे इक्वल आ दैन वट वैल्यू ऑफ y 0 होगी हेयर अगर y दी वैल्यू है तो x 0 होगी ओके नाउ आप ड्रा द ग्राफ ऑफ ओकेशन 3 and 4
ਸਿੰਪਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ। ਓਕੇ ਨਾਓ x ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 3, ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਨ y ਲਾਈਜ਼ 0, ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ y ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 0, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 0, ਦਿਸ ਲਾਈਨ y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 2, ਇੱਥੇ y 2 ਆ ਤਾਂ x ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 0, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ। ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਟੂ यूज़ इन 10th क्लास, ये तुसी 10th क्लास च करके आए हुए हो, ग्राफ बनाने सीख के आए हुए हो। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू राइट टेक आर्बिट्री पॉइंट 0 0, तुसी आर्बिट्री पॉइंट लेने आ 0 0। ओके वट इज़ आर्बिट्री पॉइंट? आर्बिट्री पॉइंट कोई भी इनोकेशन आ जा ओकेशन आ कोई भी ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਓਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਓਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 0 0 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਨ ਓਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਫ ਤੱਕ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਓਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇਨ ਓਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਨ ਓਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਓਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਇਨ ਓਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ठीक है। आप पुट किया x नू 0 0 ग्रेटर दैन 3 आजू, 0 ग्रेटर दैन 2 आजू, ठीक है। थोनू पता 0 ग्रेटर 3 तो नहीं हुंदी, दैन ता एक की हो गया इट इज़ फॉल्स। ओके इट इज़ फॉल्स, दैन शेड सेम 0 ग्रेटर दैन 2 तो नहीं हुंदी, इट इज़ फॉल्स। ओके तो इत्थे जिहड़ी एक लाइन लिखनी आ, ध्यान नाल सुनियो मैं जिहड़ा बोल रही हाँ। अगर तुहाडा ये चीज़ फाल्स आउंदी आ तां शेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन वट इज़ ओरिजन? दिस वन। अगर फाल्स आ तां थोड़ा जिहड़ा शेड करना तुसी रीजन वो अवे होगा ओरिजन तो। ओके अगर ट्रू आ तां तुसी जिहड़ा शेड करना रीजन वो टूवर्ड होगा ओरिजन दे। टूवर्ड मतलब उहदे वल होगा, अवे वो तो दूर होगा। ओके तां हैंस इत्थे तुसी हुण शेड करोगे इस तरह मैं शेड किया, देखो टूवर्ड अवे होगा, अवे मतलब दूर जाऊगा ओरिजन तो। ओरिजन अपना आ सी ते तो तुसी इस तरह हल्का हल्का शेड कर देना दूर। सेम दिस वन भी दूर जाऊगा। हुण आ शेड किवें कीता होया, तुसी दोनों दे विच कॉमन रीजन देखना, ठीक है। जिथे जाके थोड़ियां अगर 2 कंस्ट्रेन आ 2, अगर 3 आ 3, अगर 4 आ 5 आ, वो सारियां जाके मिलदियां होण। ओके कोलैप्स करदियां होण सारियां जाके, मतलब कॉमन रीजन तुसी शेड डार्कली करना। जिवें आ रीजन सीगा, देखो इत्थे सिर्फ ए लाइन सीगी, इत्थे सिर्फ ए लाइन सी, इत्थे सिर्फ ए सी, इत्थे सिर्फ ए सी, बट इत्थे आके ए लाइन भी आउंदी आ उपर नूं जांदी आ ते ए लाइन भी बाहर नूं जांदी आ, तां दोने आके कोलैप्स कर दियां तां ए रीजन तुसी डार्क कर देना। ओके क्लीयर। तां एंड ते की लिखना, हैंस रिक्वायर शेडर रीजन अनबाउंडड। हुण वट इज़ अनबाउंडड? अगर तुहाडा रीजन इस तरह आउंदा मतलब खुला आउंदा, ठीक है, तां ओह की रीजन होगा अनबाउंडड होगा। ओके ਉਹ अनबाउंडड होगा। सैकेंड टाइप होंदी है बाउंडड। बाउंडड मतलब अगर थोड़ा रीजन बनिया गया, जिस तरह देखो एग्जाम्पल दे विच, ठीक आ गई एग्जाम्पल दे विच थोड़ा रीजन बंद हो गया ना, तो यह बाउंडड आ। ओके अगर ना थोड़ा अनबाउंडड होवे ना बाउंडड होवे, मतलब एक रीजन इधर नूं जावे एक इधर नूं जावे, कोई कॉमन रीजन बने ना, तुसी उत्थे लिखोगे सोल्यूशन एम्प्टी सैट, मतलब उत्थे कोई हल नहीं आया। ठीक है, ये 3 टाइप के सोल्यूशन होंगे आ ग्राफ के विच, बाउंडड अनबाउंडड ते एम्प्टी सैट। ठीक है, तो अपना ये अनबाउंडड आ गया। हैंस रिक्वायर शेडर रीजन इज़ अनबाउंडड
फिजिबल रीजन, फिजिबल हुंदा एग्जिस्ट करना, जिहड़ा रीजन साडे कोले आ गया। ऑबटेन बाय, ये किहदे द्वारा बनिया सी, कंस्ट्रेन 1 एंड 2। ये आपां जरूर ओकेशनां तो बनाया, पर जिहड़ा रीजन बनिया वो की तो बनिया, कंस्ट्रेन तो ही बनिया। कंस्ट्रेन मतलब इनोकेशन, इन्हां तो ही बनिया, क्योंकि इन्हां ने आपां नूं दस्सिया भी ये ट्रू आ के फाल्स आ, शेडर रीजन अवे होगा कि टवर्ड होगा। ओके, तो तुसी इत्थे लाइन लिखनी है भी कंस्ट्रेन इनोकेशन भी लिख सकते हो, गिवन इनोकेशन। हैंस जिहड़ा अपना सोल्यूशन सैट होगा, क्योंकि +1 दे लई तुहानूं सोल्यूशन सैट ही पुछया उहने, सोल्यूशन सैट होगा सिस्टम ऑफ इनोकेशन दा, वो किहड़ा होगा, ABC अनबाउंडेड। ओके, ये थोड़ा सीगा सम, ठीक है, ग्राफिकल मैथड वाला। ये सीगा सिंपल, मतलब थोड़े कोले अगर सिंपल ओकेशन आ गई तो नाउ हुण अगर थोड़े कोले इस तरह ओकेशन दे विच प्रॉपर XY आ जाए तो तुसी उहनूं किवें सॉल्व करना, ठीक है। आई सॉल्व दिस सम, तो फर्स्ट सेम लाइन तुसी लिखोगे, कन्वर्टिंग गिवन इनोकेशन इनटू ओकेशन। ओके, सिंपली इक्वल टू साइन पा देने आ तुसी। तो ये किवें फाइंड करने आ, पुट x इज इक्वल टू 0, जिमें तुसी 10th क्लास विच करके आए हो, ठीक है। सिंपल x 0 भरोगे, दो वैल्यूज़ कढ़नियां ग्राफ बनाने लिए, तुहानूं पता 2 वैल्यूज़ आपां नूं चाहीदियां, ठीक है। x 0 पुट करोगे, y आजू, y 0 करोगे, x आजू। सेम सैकेंड ओकेशन विच कर लांगे, उस तो बाद आपां टेबल बनाने हुंदे आ, ठीक है। सेम टेबल बना लांगे दोने ओकेशनस ते। नाउ ड्रा द ग्राफ ऑफ ओकेशन 3 एंड 4 ड्रा करांगे, ठीक है। फर्स्ट की होगा, x 0 आ, y 4, दिस पॉइंट आजू, दैन x 8 आ, y 0, तो किहड़ा पॉइंट आजू, दिस वन। तो तुसी ड्रा कर देनी है लाइन, दोने पासे एरो जरूर पाने हैं, तुहानूं 10th क्लास बहुत चंगी तरह दस्सिया गया। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट आ, x 0 y 8, दिस वन, दैन x 4 y 0 एंड दिस वन, ड्रा कर दोगे, ठीक है। इस तरह सॉल्व हो गया। नाउ हुण इहदा आपां की करना, टेक आर्बिटरी पॉइंट, क्योंकि शेडर रीजन लभना, ये मैं पहला बनाया होया, इस ते ध्यान ना दिओ। पहला आपां देखते हैं किवें आया। शेडर रीजन लभना, 0 0 पुट करांगे, किहदे च, 1 ते 2 कंस्ट्रेन दे विच। 1 च पुट कीता, देखो 1 दिस वन सी, तो x 0 हेयर भी 0, सारा 0 हो गया, 0 लेस दैन इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, 0 लेस दैन इक्वल टू 8 ट्रू आ। देन की लिखोगे, शेडर रीजन टूवर्ड टू दी ओरिजन, शेडर रीजन ओरिजन दे वाले चले जाऊगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पुट करांगे, ये भी 0 लेस दैन इक्वल टू 8 आजू, इट इज आल्सो ट्रू, शेडर रीजन टूवर्ड टू दी ओरिजन, शेडर रीजन फिर ओरिजन वाला आ गया। तो here this one is origin, okay। फर्स्ट लाइन सी थोड़ी this one, तो तुसी पहला हल्का हल्का इस तरह ड्रॉ करोगे, ओके। देन सेकंड लाइन सी this one, इस तरह हल्का हल्का इन ड्रॉ करोगे। नाउ व्हाट इज कॉमन रीजन, देखो 3 पार्ट च रीजन डिवाइड हो रहा, दिस एंड दिस। हेयर आ लाइन दा अंदर नूं आ रहा, बट आ लाइन दा उदों भी अंदर नूं आ रहा, तो ये रीजन कैंसल हो गया, दोनों लाइनां नहीं मैच कर रही। नाउ हेयर दिस लाइन दा अंदर नूं आ रहा, पर एदा होर अंदर नूं जा रहा, तो यह भी कैंसल हो गया, क्योंकि इत्थे भी लाइन्स मैच नहीं कर रही। हेयर अपने को लाइन्स मैच कर रही, वाई, बिकॉज एदा भी अंदर नूं आ रहा तो एदा भी, तो थोड़ा शेडर रीजन किहड़ा हो जू, दिस वन। तो इनू नेम दे दोगे OABNC, ओके, कोई भी दे सकते हो नेम, तुसी दे देना। तो एंड ते की लिखना, OABC इज फिजिबल बाउंडेड। देखो ये बाउंडेड हो गया ना, बाउंडेड मतलब बाउंड हो जाना, बन्निया जाना, ठीक है, क्लोज हो जाना, ये क्लोज हो गया। हुण ये फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ही क्यों क्लोज होया, इधर नहीं गया, इधर नहीं गया, वाई, बिकॉज इत्थे एक आ लिखिया होया सी एंड ते x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। तो यदा मैं तुहानूं स्टार्टिंग च ही दस्सिया, यदा मीनस की हुंदा कि जिहड़ा थोड़ा शेडर रीजन आ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट विच बनूगा, क्योंकि फर्स्ट विच भी फर्स्ट विच ही x y पॉजिटिव हुंदे आ। तो ये चीज़ दा सिर्फ ग्राफ बनाउण वेले तुसीं यूज़ करोगे, होर इहदा सम च किते यूज़ नहीं, ओके। तो तुसीं इनू सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ही रखोगे, ओके, इधर नहीं लैके जाओगे, ना इधर ना इधर, क्लीयर। अगर ये चीज़ ना हुंदी तो सारा रीजन इस तरह होना सी, ठीक है। तो एक ही आ गया, बाउंडेड आ गया शेडर रीजन, ऑब्टेन बाय गिवन इनोकेशंस, ठीक है। कंस्ट्रेन लिख दो, इनोकेशन लिख दो, सेम मीनिंग आ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਹੈਂਸ OABC is required solution set of given invocation, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਇਨੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਥਰਡ ਆ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਆ, 4 ਲਾਈਨਸ ਹੈ, 1 2 3 4, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਸਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ, ਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਾਇਆ ਗਾ, ਰਿਟਨ ਕੀਤਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਰਿਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰੂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਵਰਡ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਵੇ ਜਾਣਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦੈਨ ਰਿਪਲਾਈ ਮੀ back, I try to solve your problem। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।